जी Yes. Sir, may I come in? जी प्लीज आइए, प्लीज बी सिट. Thank you, sir. Okay, introduce yourself. Assalamu alaikum, sir. My name is Sarah Shamim. I belong to Gazipur. My mother's name is Mrs. Shamima Khatun, and she is a homemaker. My father's name is Mr. Shamim Khan, and he is a heavy-duty mechanic. My hobby is crafting and painting, and I'm passionate about learning, especially in science. So in future, I want to become an ophthalmologist. That's all about my introduction. Okay, you said your father is what? Heavy-duty mechanic. What is this heavy duty mechanism? He actually works in Saudis to repair military cars. Okay, military cars. Good. तो how you manage with your parents? Parents आप इतने दिन से नहीं रहते हैं तो कैसे मैनेज करती होंगी आप? So, मतलब कब कब बातें होती है आपकी पेरेंट्स से, आपको उससे? रात में आते हैं ड्यूटी से तो फिर बात होती है वीडियो कॉल पे. अच्छा, वीडियो कॉल पे डेली बात करती हैं? यस सर. ओके ठीक है. सारा AMU क्यों ज्वाइन करना चाहती हूँ बेटा? I want to join AMU because it is a prestigious university with a quality of education, diverse cultures, and strong values. And I believe studying here will provide me great opportunities. Okay, what you want to become? I want to become an ophthalmologist. Ophthalmologist. What are ophthalmologists? They are eye doctors who repairs defects of eyes, vision problems. Then why are eye surgeons? What are eye surgeons? They do surgeries of eyes. Surgeries of eyes. Can you spell ophthalmologist? Spelling बताइए जरा. OPHTHALMOLOGIST. Do you know there is a certain competition that holds this spelling? Spelling bee. Yes, spelling bee. Okay, who is the currently winner of that? Do you know that? No sir, I don't Okay. have They have a certain Muslim है ना बच्चा? Muslim है. हाँ ठीक है. Okay, we write hippopotamus. 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 The spelling of hippopotamus. HIPPOMATUS. Okay, and why we have a silent P in pneumonia? Pneumonia में P क्यों silent होता है? यार हम निमोनिया तो डायरेक्ट कैंसर लिख सकते थे, P silent क्यों रखा? अभी जानने की कोशिश की. Okay, ठीक है. Your favorite subject is science. Yes. Okay. Can you tell me the names of your first chapter? Crop and production. Okay. And Crop production and management. Complete name है ना मेरे crop पास. production and management. Okay. Microorganisms, foe or enemy. Foe and few. Friends and Friends and few. Friends and few. Name sorry. 2 microorganisms. Yes. One is foe and one One is is friend. few. So, lactobacillus, which helps in curd formation, Okay. is friend, and virus, which causes diseases, is a foe. ठीक है. Okay. Can you tell me any prime number which is greater than 50? Greater than 50. 67. 67. Why is it prime? How you tell that this is a prime number? Because it has only two factors of which is itself and one. Okay. I'm writing this number now. This is 1.3. Is it a rational number or irrational number? So it is a rational number. Rational number. But what is the definition of rational number? Rational number are those numbers which can be written in the form of PQ. PQ? P by Q. P by Q. That's all. And the P and Q are integers and Q is not equal to 0. Okay. Then this is not written in the form of P by Q. This We is can 1. write it in the form of Wait, P. how? 13. We can divide 13 by 10 and it will give us. Okay, we multiply with 10 divided by 10 ना. In fact, हाँ ये cancel करके हम लोग इसको P by Q form में ला सकते Yes, हैं. sir. Okay. Can you tell me who has written the first chapter of your Urdu literature? Urdu literature के पहले chapter का नाम क्या है? अल्लामा इकबाल. माँ का ख्वाब है माँ और का ख्वाब? उसके वो है अल्लामा इकबाल है. क्या बोलते हैं? ऑथर को उर्दू में क्या बोलते हैं? शायर. शायर बोलते हैं या सर मुसन्निफ? ऑथर को हाँ, मुसन्निफ बोलते हैं. मुसन्निफ बोलते हैं. Yes. ओके, आप मुसन्निफ लिख के दिखाएं उर्दू में. मुसन्निफ लिख के दिखाएं. मुसन्निफ आ गया. अच्छा नाफा. ये ठीक है. अच्छा सारा ये बताओ how AMU helped you to become an ophthalmologist? So it has great facilities. JNU है अच्छी medical. मेडिकल्स अच्छी है. ओके. Who is the vice chancellor of AMU? Professor Naima Khatun. And who is the vice president of India? Vice President. So, Okay.
Do you know there is current war between certain countries, Yes, Iran and Israel. Iran and Israel? Okay. And another one is Sir, Palestine. एक बार और चल रही है एक और war चल रही है। पैरेलल Sir, और आज से काफी दिनों से चल रही वो 2 साल से चल रही है। sir, जब से एम्स में सर वो जीके का मामला कम हुआ ना, बच्चों ने जीके जनरल नॉलेज पढ़ना कम कर दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जा सकते हैं आप सारा। Thank you, sir. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। चलिए आइए, वापस आइए। आ जाओ बेटा, बैठो। सर क्या क्या चीज़ें आपने वॉच किया? तो सारा अस्सलाम एंट्री पर करना है, मैंने नोट किया था। ठीक है ना। हमें जब तुम भूल गए थे enter तो होते पहले हैं, तुम है ना, भूल गए थे ना। हाँ, हाँ, तो हो मैं जाता है अभी कभी कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ सारा को। हम लोग हर इंटरव्यू में ये काम करते हैं। आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देने के बाद हम आपको पॉइंट्स है। इनफैक्ट ऑलरेडी इसका आज इंटरव्यू हो चुका है। ये जा रही थी, मैंने इसको रोका, इसलिए रोका कि आप जानो कि ये बच्ची इतनी प्रिपेयर्ड है, कितने अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल है इसके। तो कभी भी इसके अंदर कुछ कमी है। पहला सर ने अस्सलाम वालेकुम ना दूर से सलाम करने के बाद फिर नजदीक आना था, फिर इंतजार करना था बैठने का, वो तुमने फॉलो किया। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन जो है ना, वो मुस्कुराहट होनी चाहिए थी तुम्हारे पास, लेकिन और अच्छी से जब हम बात करते हैं ना, सामने हमारे 2 टीचर बैठे तो वो बोलते कहते हैं सर माय नेम इज सारा शमीम, माय फादर नेम इज दिस माय। तो एक पॉज लेकर हमें बोलना है, ठीक है ना। एक स्पीड नहीं होनी चाहिए, पॉज होना चाहिए। हमारे हर सेंटेंस के बीच में एक पॉज लेकर हमें बोलना है। बाकी तुम्हारा एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि जो सवाल तुम्हें नहीं पता था तुमने उसके लिए सॉरी बोल दिया। हाँ। एग्जैक्ट यही होना चाहिए। हम बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि यस इधर उधर देखते हैं, सोचते हैं, वो नहीं करना है। देखो कोई भी दुनिया में पर्सन ऐसा नहीं है जिसके पास 100% नॉलेज है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो कहिए कि आज मैंने पढ़ा है लेकिन मैं इस वक्त नहीं याद कर पा रहा, सॉरी बोल दीजिए। दैट्स अ गुड आंसर अगर हम सॉरी बोलते हैं गुड। तो एक चीज़ तो सर आपने गौर किया कि इससे मैंने हर सब्जेक्ट का सवाल पूछा, ठीक है। अच्छा, ये मेरे को सामने दिख गया कि हमारा ना एक शमशाद पे 5वां सेंटर ओपन होने वाला है, तो सोचा मैं दिखा दूँ यार। मेरे एडिटर ने यहाँ पर रख के बहुत शानदार बनाया सर इसने। अच्छा, तो मैं आपसे ना देखो, पहले तो अपना नेल्स देखो नेल्स मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, तो नेल्स कटवाने का है पहला। दूसरा, आई कांटेक्ट तुम्हारा बहुत शानदार था ना। बहुत कम लोग हैं ना इस लेवल पे आने के बाद। कितने इंटरव्यूज अभी तक दे दिया तुमने? सर मैंने मतलब किड्जी पे भी इससे पहले भी दिए। अच्छा, तुम्हारे राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं। अभी नवाब सर, शुएब सर का पहला था। यस सर। चलो ठीक है, अब तुम्हारे सामने अभी बेझिझक निकलेंगे, अब शुरू होगी। अच्छा, एम आपको एमयू से कनेक्ट करना। सर ने बोला बहुत अच्छा है, आपको जेएनएमसी के बारे में और भी कुछ पता होना चाहिए, उसके रैंकिंग पता होना चाहिए, क्यों अच्छे अच्छे जो डॉक्टर्स यहाँ से निकले हैं, है ना, जो उनका नाम ऑलरेडी है तुम्हारे आई से रिलेटेड वाले में, उनको कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। सवाल आपसे कहीं से पूछा जा सकता है, लेकिन बेस्ट अगर आपने देखा हो कि मोस्ट ऑफ द सवाल हम इनके इंट्रोडक्शन से पूछ रहे थे, जो आप बोल रही होती है। ये बात सबको पता है कि इंट्रोडक्टरी से मोस्ट ऑफ द सवाल तैयार होते हैं। हमारे पास अगर और सवाल का खजाना होता तो हम वहां से सवाल पूछ रहे होते हैं। हम तो रैंडम पूछ रहे हैं आपसे सवाल, ठीक है ना। और सर सही है। तो मेरे को अभी लगता है कि अभी ना ये 13 है 15 के हिसाब से जी। अभी तक तुम 15 आउट ऑफ 15 नहीं पहुंची हो। मेरे हिसाब से भी अभी भी तुम 13 में ही हो, ठीक है ना। तुम्हें अपने आप को और इम्प्रूव करना है नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू। हम जाते हैं, सलाम कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें पॉइंट आउट करना होता है। मैं आपको इंटरव्यू दिखा रहा था, तो माजरत चाहूँगा कि मैं आपको इंटरव्यू से रिलेटेड आपको अभी तक डॉट नहीं बता पाया, जो आपके चैट सेक्शन में आ रहे थे। तो एक लाइव इंटरव्यू हम दिखा रहे हैं कि अभी हम लाइव इंटरव्यू कैसे ले रहे हैं। मेन क्या होता है, जब आप हमारे पास 7th और 8th से जी 5वां और 6ठा स्टेज आपको 4 जगह इंटरव्यू राउंड में जाना है आपको। इनफैक्ट अगर किसी एक टीचर ने ले रखा है, उस टीम ने अगर ले रखा है, तो आप कहें सर मेरा यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, मुझे नई जगह जाना है, तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि आपके पिछले इंटरव्यू में आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं। तो हम ये देखेंगे कि आप अगले इंटरव्यू में वो सब गलतियाँ सुधार पाए हैं कि नहीं सुधार पाए। अच्छा, अब इंटरव्यू के लिए आपको अगर ज्वाइन कर रखा है गिव इंटरव्यू इन ऑफलाइन, बिल्कुल आप ऑफलाइन में आकर के इंटरव्यू दे सकते हैं, मना ही नहीं। आज कितने नंबर का इंटरव्यू कौन चल रहा है सर? आप पास कितने नंबर का आ गया? लो 83 नंबर का टोकन तो हमारे पास सामने दिख रहा है, यानी आज 83वां इंटरव्यू ऑफलाइन में तो हो चुका है। ना जाने अभी उधर बाकी जगहों पे कौन सा नंबर चल रहा होगा, ठीक है। तो इतने सारे टोकन्स और ऊपर से ऑनलाइन में रोजाना हम लोग कम से कम 150 से 200 इंटरव्यू ले रहे होंगे रोजाना, क्योंकि ऑनलाइन में मेरे पास याद है 70 से 80 इंटरव्यू तो रोजाना हम लोग फॉर्मुलेट कर रहे हैं जो बच्चे ऑनलाइन में दे रहे हैं। तो ऑनलाइन में अगर आपका इंटरव्यू बहुत दिन है तो आप ऑनलाइन में जब तक इंटरव्यू दें, और ऑफलाइन में आकर के फिर आप ऑफलाइन के इंटरव्यू मजा लें, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होगा फाइनल वो ऑफलाइन मोड में ही होगा। और जो नंबर है ऑब्वियस सी बात है, आपका नंबर आपका मेज क्लास का पता है 8077938908। इस नंबर पे आप कॉल करके 2 दबाएंगे आप, प्रेस 2, और हमारे इंटरव्यू से रिलेटेड जितनी भी इंक्वायरीज हैं या बाकी सब चीज़ें सिर्फ 500 रुपये में आप हमारे पास आ करके इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चले बच्चों लोग, चले बाय बाय।